Hello everyone. Let us discuss another part of this exercise 11.3 question 6 to 10. This is class 8th NCERT Maths chapter Mensuration. To go through the questions 1 to 5, you have to go through my previous video, which is part 1 of this chapter. The link of this part, which is part 1, is given below the description box. So now let us start few more questions which are from questions 6 to 10. Now what is question number 6? We have to describe how these two figures are alike and how they are different. And also we have to find out which box has a larger lateral surface area. Now you can see how these two figures are alike because the height of this cylinder is also a 7 centimeter and the height of cube is also a 7 centimeter. Both the figures has the same heights. So by looking at the height, these two figures are alike. But how they are different? You can see both figures are of different shapes. Having their shapes different, we can say these two figures are different. Now we have to find the lateral surface area. The lateral surface area or the curved surface area of cylinder is what? 2 pi RH. 2 is a number constant, pi is a value 22 by 7, pi has got the value 22 by 7, r is a radius, and you can see this 7 centimeter which is at the base, you can see this is a diameter. Radius will be half of 7, which will be 7 by 2, and height is 7 centimeter. We have calculated, and LSA for cylinder is coming as 154 centimeter square. Now, what is the lateral surface area of cube? The lateral surface area or the area of 4 walls. That is the 4 times side into side. So, 4 into 7 into 7. We will get the value as 196. 196 is greater than 154. So, we can say the cube has a larger lateral surface area. Now, come to the question number 7. We have a knowledge of here a closed cylindrical tank. What is the total surface area of closed cylinder? I have discussed in my previous video. The TSA or the total surface area of a closed cylinder is 2 pi r and r plus h. I have written a formula here. Okay, so here radius is given as 7 meter, height is given as 3 meter. Just put the value and you can get the volume, this value as 440 meter square. But what is the question here? This closed cylindrical tank which has a radius of 7 meter and height 3 meter, this is made from a sheet of metal. What does it mean? There is some sheet of metal in the form of having some rectangular shape, I can say. Okay, from this sheet of metal cylinder is made. Okay, so the area of this sheet is same as the area of this cylinder. This is a closed cylinder. So what is the area of this closed cylinder, which is the total surface area? This is 440 meters square. This area of cylinder is same as the area of the sheet because from this sheet only cylinder is made. In this way, question number 7 is done. Now let us move to the another question. Now let us discuss the question number 8 of this exercise. Here the lateral surface area of hollow cylinder is given to you, and then after this knowing the lateral surface area, we have come to know that it is cut along the height. Means cylinder को हमने cut कर दिया और after cutting इसने एक rectangular sheet of paper बना लिया. तो I have taken a sheet of paper here. You can see हम इस पेपर को जब रोल करेंगे, अगर आप देखते हो ये लेंथ है, इफ इट इज अ लेंथ एंड दिस इज अ ब्रेथ ऑफ द शीट ऑफ दिस पेपर. तो अगर हम लेंथ के अलोंग से इसको रोल करते हैं, सो आफ्टर रोलिंग हमें क्या मिलता है? सिलेंडर मिलता है. ठीक है, हमने इस शीट ऑफ पेपर को लेंथ के अलोंग रोल किया तो हमें एक हॉलो सिलेंडर मिलता है जिसका हमारा, आप ये देखोगे, बेस कैसा है? राउंड है, सरकमफेरेंस कवर कर रहा है. सरकमफेरेंस क्या कवर कर रहा है? इस शीट ऑफ पेपर का लेंथ को हमने रोल किया तो सरकमफेरेंस बन गया बेस. ठीक है, इसी तरह से जब हम अलोंग द लेंथ उसको रोल करते हैं तो लेंथ बन जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस.
ठीक है। या फिर जब हम इसका लेंथ के अलोंग किया, अब हम अगर विथ के अलोंग कवर करते हैं तो विथ भी सिलेंडर का सरकमफेरेंस, बेस अगर हम विथ के अलोंग करेंगे तो बेस जो इसका राउंडेड है ये क्या बनाएगा, इसका सरकमफेरेंस। ठीक है। सो वो तो बात अलग है कि हम किसके अलोंग रोल करते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि सिलेंडर ऑलरेडी है आपका, ठीक है, और इस सिलेंडर को आपने अलोंग द हाइट कट कर दी, और सो कट करते ही ओपन करेंगे तो शीट ऑफ पेपर मिल जाता है। ठीक है। सो अलोंग द हाइट कट किया, तो हम ये कह रहे थे कि जब आप विथ के अलोंग रोल करते हो तो भी सरकमफेरेंस मिलता है। सो ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, जो विथ होगा रेक्टेंगुलर शीट का वो एक सरकमफेरेंस बनता है सिलेंडर का। सो विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विल बी द सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। विथ क्या है 33 और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि LSA पे जाएंगे, बिकॉज हमको लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया हुआ है। तो LSA क्या होता है, आपका LSA है 4,224। यहाँ पे हम 2 की वैल्यू पता, पाई की वैल्यू पता, R की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है। R हमारा दिस कमिंग एज 21/4 और H इज अननोन, तो H हमारा आ गया 128। सो अगर हमने इस सिलेंडर को हाइट के अलोंग खोला तो एक रेक्टेंगुलर शीट मिला जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है 128 और विथ ऑलरेडी गिवन है 33। सो यहाँ से आप पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लोगे, 322 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक रोड रोलर है और रोड रोलर कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, रोड रोलर कंप्लीट कर रहा है 750 रिवॉल्यूशंस। सो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। इफ आई टेक अ रोलर लाइक टेक दिस सिलेंडर, अब ये समझो ये रोड रोलर है, ठीक है, और इसने ये ऐसे करके राउंड करके, सपोज कीजिए ये पूरा आपके पास एक ग्राउंड है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से पूरा कवर करते हुए राउंड राउंड राउंड, कितने नंबर ऑफ टाइम्स राउंड कर रहा है अभी हमें फिलहाल नहीं पता। सपोज कीजिए 5 राउंड किया, 1 राउंड में 1 सरकमफेरेंस, 2 राउंड में सेकेंड सरकमफेरेंस, 3rd राउंड में 3rd टाइम सरकमफेरेंस, 4th राउंड में 4th टाइम सरकमफेरेंस एंड 5th राउंड में 5 टाइम सरकमफेरेंस। क्योंकि ये इसकी बाउंड्री ही तो कवर कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है सरकमफेरेंस ऑफ दिस राउंड, या CSA कह लो, सिलेंडर है तो CSA, ठीक है, CSA कवर कर रहा है। सो नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास कितने हैं, कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ले रहा है, 750 ले रहा है, ठीक है, 750 रोड रोलर कंप्लीट रिवॉल्यूशंस कर रहा है टू लेवल द रोड। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मींस अगर आप ये देखोगे कि ये रोड रोलर पूरा का पूरा आपका फील्ड को कवर कर रहा है। सपोज कीजिए आपके पास इतनी ही फील्ड है, जितना इसकी हाइट है यही पूरी फील्ड ये कवर कर रहा है ऐसे, तो ये पूरा जो कवर करेगा ये फील्ड को ही तो कवर कर रहा है। जो इस सिलेंडर का रोलिंग हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रोलिंग, दैट इज कवरिंग द एरिया ऑफ द फील्ड, ये पूरी फील्ड का एरिया को कवर कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, जबकि डायमीटर रोड रोलर का हमारे पास है 84, डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे, 84 का हाफ 42, ठीक है, और लेंथ जो है रोड रोलर की लेंथ, जैसे कि ये इसकी जो ये लेंथ है ये इसकी हाइट होती है, ओके, ये लेंथ क्या है इसकी, हाइट है, हाइट क्या है इसकी 1 मीटर। तो आप यूनिट्स को ध्यान दोगे, 84 सेंटीमीटर ये मीटर में, तो मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम 100 सेंटीमीटर में। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज 2 पाई RH, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। मैंने अभी आपको बताया कि रोड रोलर जब ऐसे करके राउंड लेता है तो फील्ड की एरिया को कवर करता है। कितने नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे ले रहा है 750, 1 राउंड का होता है सरकमफेरेंस, अरे 1 राउंड का है आपका 2 पाई RH, मीन्स LSA है 26400, दिस मच ऑफ टाइम्स, तो 750 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो आप फिर से कन्वर्ट कर लो, डिवाइड करके 100 into 100 आपका हो जाएगा 10,000 से डिवीजन। सो यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड, आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी शो यू द वर्किंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, अब आपको 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। सो ये आपका एक टाइम आएगा 1 टाइम मीटर, एक और बार आप कर लोगे 1/100, ये 1 मीटर के लिए हो गया 1 मीटर एंड अगेन 1 मीटर।
तो मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। यहां से आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। Here, in this question number 10, a company is packaging a milk powder in a cylindrical container. ये container है, already figure बना है. Let me show you once again. Cylindrical container है. इसके ऊपर एक लगा दिया गया है label. कितनी साइज का लगाया गया? Only this much of part. यहाँ पे इतना पार्ट एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, जितनी साइड में इसका लेबल लगा। तो ये भी सरफेस एरिया ही कवर कर रहा है LSA, लेकिन कितने पार्ट के लिए? सिर्फ इतने पार्ट के लिए, जितनी पार्ट में मेरा रेड, लाइक आई एम कवरिंग इट विद अ रेड पेंट। सो समझ लीजिए ये इसका लेबल लगा हुआ है, ठीक है। पर टोटल हाइट क्या है इस सिलेंडर की? टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। ओके, यहां से यहां तक पूरी हाइट सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर है, और लेबल कितनी हाइट पे छोड़ के लगा है? 2 सेंटीमीटर अबव एंड 2 सेंटीमीटर बिलो छोड़ के लगा है। तो हमें रिमेनिंग हाइट निकालनी। इसको अगर हम स्मॉल h मान लें, स्मॉल h कैसे निकलेगा? टोटल हाइट 20 है, 20 में से माइनस कर देंगे अबव सरफेस जो 2 है, और जो नीचे का सरफेस का हाइट है 2, 2 + 2 दैट मीन्स 4। तो 20 से 4 हैज गॉन, दिस विल गिव यू h ऑफ द लेबल, जो हमारा ये लेबल लगा है पाउडर मिल्क का एड जो लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ का हमारा हाइट क्या आ जाएगा? h आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। नाउ अब इसका क्या पूछ रहा है आगे? द कंपनी प्लेसेस द लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल? एरिया ऑफ द लेबल मीन्स हमको निकालना है CSA, कर्व सरफेस ही निकालना है। तो CSA क्या होता है? 2πRh, 2πRh ये होता है। तो इसमें आप रख लोगे, आपके पास 2 पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 फिक्स वैल्यू है। आर कितना आ रहा है? इसका डायमीटर है 14, डायमीटर है 14, तो रेडियस हो जाएगा 7, और हाइट अभी हमने फाइंड आउट की है 16। सो बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज वी कैन गेट द CSA एज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। 22/7 into 7 into 16, we are getting 704 centimeter square. So this is all the question of NCERT. Next video I'll discuss the questions on the ML Agarwal. Thank you to everyone. Please like, share and subscribe my channel and keep watching my videos.